ایسا خطیب بکمال لاؤ، میرے ندیم کی مثال لاؤ، ایسا خطیب بکمال لاؤ، میرے ندیم کی مثال لاؤ، ایسا خطیب بکمال لاؤ، میرے ندیم کی مثال لاؤ، میرے ندیم کی مثال لاؤ۔ مسلک و دین کا وکیل ہے یہ، شعر خطابت کی قندیل ہے یہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین، ناظرین محترم، یہ سورہ جمعہ کی دوسری اور تیسری آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات طیبات میں پہلے جو دو عنوان میں نے بیان کیے ہیں، ایک موضوع تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری بحیثیت دعائے خلیل، دوسرا عنوان تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت احسان رب جلیل۔ جو پہلا موضوع تھا وہ ربنا وبعث فیہم رسولا، اور دوسرا عنوان تھا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ آج یہ آیت کریمہ اسی مناسبت کے ساتھ ملتی جلتی، الفاظ ابتدائی مختلف ہیں۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، بعث فی الامیین، جس نے امیوں میں بھیجا اپنے رسول کو، منہم، ان میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کریں ان پر اس کی آیات کو، ویزکیہم، اور انہیں پاک کریں، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو سکھائیں کتاب اور حکمت، وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اگرچہ اس محبوب کے آنے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ پہلی آیت نے بتایا حضور دعائے خلیل ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ دوسری آیت لقد من اللہ علی المؤمنین نے بتایا حضور احسان رب جلیل ہیں۔ آج کی اس آیت نے بتایا میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وجود کی دلیل ہے، یعنی اللہ کے اللہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، کہ محبوب کو دیکھ کر اس رب کو سمجھو کہ وہ کیا ہے، اس کی عظمتیں کیا ہیں، اس کا تقدس کیا ہے، اس کی کبریائی کیا ہے، اس کی شان عظمت و جلالت کیا ہے۔ یہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہے۔ پہلی آیت میں اللہ کی صفات بیان ہوئے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ الملک، وہ بڑا بادشاہ ہے۔ القدوس، بڑی تقدیس اور عظمت اور پاکیزگی والا ہے۔ العزیز، بہت غالب ہے۔ الحکیم، بڑی حکمتوں والا ہے۔ اب یہ چاروں صفات اللہ جل شانہ کے بیان کیے گئے، یعنی رب کو سمجھنے کے یہ انداز ہیں کہ اس کی بادشاہت کو دیکھو، تبارک الذی بیدہ الملک، پوری کائنات پہ اس کا قبضہ ہے، سب کا وہ بادشاہ ہے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، عرش، کرسی، لوح، قلم، سب کچھ اس کا ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ایک ایک چیز کو آدمی دیکھے تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے۔ علماء نے عجیب عجیب طریقوں سے باتیں سمجھائی ہیں، جیسے دھوئیں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں آگ جل رہی ہے، میگنی کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں یہ کسی جانور کے جانور ہونے کی علامت ہے،
قدموں کے نشان دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی آدمی گزرا ہے، تو بھئی اتنی بڑی کائنات کو دیکھ کر کم از کم رب کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہے اور وہ ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا رازق ہے، ہم سب کا مشکل کشا، حاجت روا، روزی رساں ہے۔ پھر وہ قدوس تقدیس والا ہے، پاک ہے، تمام قسم کی آلائشوں سے، گندگیوں سے، کمزوریوں سے، عاجزیوں سے، نقص سے اللہ پاک ہے، اس لیے اس کی تقدیس کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ مقدس ہے۔ العزیز بہت غالب ہے، ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے، ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے، ہر چیز پر اس کی حاکمیت ہے۔ ایک پتا اس کے امر کے بغیر نہیں ہلتا، ایک برگ نہیں ہل سکتا اس کی اجازت اور اس کے حکم کے بغیر۔ اور کائنات میں جو کچھ جیسے جہاں ہو رہا ہے یہ اس کے امر سے ہو رہا ہے۔ پھر الحکیم، اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے، میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ آج موسم بدل رہا ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، دن چھوٹا کیوں ہے، راتیں بڑی کیوں ہیں، گرمیوں میں راتیں چھوٹی کیوں ہوتی ہیں، دن بڑا کیوں ہوتا ہے، اس موسم میں سورج ادھر سے نکل کر وہاں کیوں پہنچتا ہے، اس موسم میں سورج کے طلوع اور غروب کے مطالعے اور کیوں ہوتے ہیں، چاند کی گردشیں کیسے ہے، نظام کائنات کیسے چل رہا ہے، ہوائیں کیسے چل رہی ہیں، یہ زمین سے پھل فروٹ سبزیاں میوے یہ ساری چیزیں اگ رہی ہیں، ایک ایک چیز اللہ کے اللہ ہونے کی علامت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ رب کے رب ہونے کی علامت کیا ہے؟ فرمایا شہتوت کے پتے کو دیکھ کر میں تو اللہ کی عظمت کو سمجھا ہوں کہ یہی پتا اگر کیڑا کھاتا ہے تو اس سے ریشم پیدا ہوتا ہے، اسی کو اگر ہرن کھاتا ہے تو اس کے نافذ میں مشک پیدا ہوتا ہے، اسی کو اگر جانور کھا لیتا ہے، گائے بیل بکرے گائے بکری بھینس وغیرہ تو دودھ آتا ہے، اسی طریقے سے اور کوئی جانور کھا لے تو ان سے گویا آلودگی اور گوبر ظاہر ہوتا ہے۔ تو ایک پتے میں اتنی خاصیتیں رکھنے والی اللہ کی ذات ہے۔ یہی ایک نوالا جو ہم کھانے کا کھاتے ہیں اور اپنے منہ کے قریب لے کے جاتے ہیں، آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے یہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ اٹھایا یہ تیرے بندے نے ہے، کھا یہ رہا ہے، لیکن میں مخلوق تو تیری ہوں، تو مجھے حکم دے اس کے لیے وبا بنوں، اس کے لیے شفا بنوں، اس کے لیے صحت کا باعث بنوں، اس کے لیے بیماری کا باعث بنوں، اس کی حیات کا سبب بنوں یا اس کی موت کا ذریعہ بنوں۔ جو رب کا امر ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہی پانی ہے، ایک آدمی پی رہا ہے صحت یاب ہو رہا ہے، دوسرا پی رہا ہے وہ مریض ہو رہا ہے۔ ایک آدمی ایک چیز کھاتا ہے وہ تندرست ہوتا ہے، اسی چیز کو دوسرا آدمی کھاتا ہے وہ کمزور اور بیمار ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی قدرت کے مناظر ہم اس کو کھولیں، پورا قرآن عقیدہ توحید سے بھرا ہوا ہے، سارا قرآن اللہ کی وحدانیت کا اظہار کر رہا ہے، سارا قرآن ایک ایک لفظ ایک ایک آیت ایک ایک حکم بتاتا ہے کہ وہ خالق اور مالک کیسا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، یہ آپ اور ہم نہیں جانتے۔ انسان اپنے آپ پر غور کرے، وفی انفسکم افلا تبصرون، کبھی تم نے یہ نہیں دیکھا اپنے آپ پر غور کر کے کہ اللہ نے تمہیں کیسے بنایا، گندے سے پانی کے قطرے سے کتنا خوبصورت انسان بنایا ہے، سر سے پاؤں تک وجود ڈھالا ہے، آنکھیں ہیں، آنکھ ہے، ناک ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، پر ہر ایک کو اپنی اپنی قوت دی ہے، یہ نگاہ ہے، زبان آنکھ دیکھتی ہے، زبان بولتی ہے، ہاتھ کام کاج کرتے ہیں، پاؤں چلتے ہیں، دماغ سوچتا ہے، وجود کا ایک ایک حصہ اپنا اپنا عمل کرتا ہے۔ پھر جسم کے ایسے اعضاء بھی ہیں جو خود بخود اپنا ایک نظام چل رہا ہے، اس سے ہمارا کوئی لین دین نہیں، ہم اس کو سوچ نہیں سکتے۔ دل ہے، جب سے خالق نے بنایا ہے آج تک چل رہا ہے، اور جب یہ اسے وہ روکے گا دنیا کی کوئی طاقت اس کو چلا نہیں سکے گی۔ ہماری آنکھیں ہیں خود بخود چپک رہی ہیں، خود بخود دیکھ رہی ہیں، اور پھر جناب یہ ایک نظام ہے چل رہا ہے۔ بال ہیں کالے سے سفید ہو رہے ہیں، ناخن ہیں یہ بڑھ رہے ہیں سفید سے، تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ لیکن یہ ساری قدرت کی شاہکاریاں دیکھ کر بھی اگر کوئی رب کو نہیں سمجھ سکا کہ اللہ کون ہے، نہیں سمجھا کہ رحمان کون ہے، نہیں سمجھا کہ رحیم کون ہے، نہیں سمجھا کہ مالک کون ہے،
कुद्दूस कौन है, हय्य क़य्यूम कौन है, राज़िक कौन है, कदीर मुतलक कौन है, हाकिम आला कौन है। तो अल्लाह ने सबसे बड़ी दलील पेश की अपने रब होने की कि हुवल्लज़ी, अल्लाह वो जात है। उसको समझने के लिए सबसे बड़ी दलील है कि बासा फिल उम्मीयीन रसूला, उम्मियों में अपने रसूल को मबऊस किया है, अपने महबूब को भेजा है। उम्मी ये अरबी में इसका तर्जुमा है अनपढ़ लोगों में। अहले अरब की उस वक्त जो सूरत हाल थी, अगर उसको सामने रखें और फिर हुजूर का उस वक्त उनमें आना देखें, तो वाकई अल्लाह की कुदरत की शाहकारी के सिवा और कुछ नहीं हो सकता कि आका उन हालात में वहां पर तशरीफ लाए जिस वक्त पूरा अरब कुफर के घटाटोप अंधेरों में छुपा हुआ था, छाया हुआ था, और जुल्म और सितम की वहां पर इंतहा हो चुकी थी। फिर उस वक्त कैफियत ये थी कि सब अनपढ़ उम्मी थे, जिनको किसी चीज की कोई शनाख्त और पहचान नहीं थी, और वो अजीब कैफियत थी कि पानी के प्याले पे लड़ते थे तो नस्लों में लड़ाइयां होती थी, जरा जरा सी बात पे झगड़ते थे। अब ऐसे लोगों में एक ऐसे वजूद की तशरीफ आबूरी, ऐसे महबूब की बेअसत जो पूरी कायनात के सरदार भी बने, इमामुल अंबिया भी बने, सैयदुल अंबिया भी बने, अहसनुल अजमलुल अंबिया भी बने, और पूरी कायनात के गोया मुरब्बी और मुहसिन बने, ऐसे महबूब की तशरीफ आबूरी ये अल्लाह की कुदरत की सबसे बड़ी शाकारी नहीं। इसको आप यूं समझिए, एक बच्चा ऐसे माहौल में पैदा होता है, गौर से समझिए, जिस बच्चे का वालिद नहीं, क्योंकि बाप से बेहतर सरपरस्त कोई नहीं हो सकता, लेकिन आने से पहले अल्लाह ने अब्बे को जुदा किया। ये अल्लाह की हिकमतें थी, अल्लाह बेहतर जानता है। शायद उन हिकमतों में से एक ये भी हो कि बच्चा बड़ा होता है तो अब्बे से चीज मांगता है, दादे से मांगता है, अम्मा से मांगता है। अल्लाह ने सारी हिकमतें, अजीब उसकी हिकमतों को वो खुद ही बेहतर जानता है। आने से पहले अब्बे को जुदा किया, 6 साल के थे अम्मा को जुदा किया, 8 साल के थे दादे को जुदा किया कि महबूब आप अब्बे अम्मा दादे से ना मांगे तो डायरेक्ट अल्लाह की जात से मांगे। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की शाहकारी है हुजूर का वजूद। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद दुनिया में नहीं है। फिर आप उस माशरे में आए हैं जो माशरा उस वक्त आलूदगी का मजमुआ था, जहां 360 बुत रखे हुए थे, जहां शराब शरबत की तरह पी जाती थी, जहां जुए का मशगला होता था, जहां पर कत्ल गारत कोई ऐब नहीं समझा जाता था। ऐसे माशरे में जो इतने अनपढ़ और उम्मी थे कि जरा जरा सी बात पर तलवारें म्यान से निकाल लेते थे, और जनाब न्याम से निकाल कर वो निकाल लेते थे और लड़ाइयां उनकी शुरू हो जाती थी। इस माहौल में हुजूर आए तो जो बच्चा ऐसे आलूदा माहौल में रहता हो तो उसके असरात उसके जिस्म पर आते हैं, उसके वजूद पर आते हैं। जैसे माशरे के लोग खाएंगे पिएंगे ये वैसे खाएगा, जैसे वो रहेंगे ये वैसे रहेगा, जैसे उनका चाल चलन होगा इसका चाल चलन भी वही होगा। लेकिन आमना के दुर्रे यतीम इन तमाम चीजों में उस माशरे से मुबर्रा, मुअल्ला, मुज़क्का, मुसफ़्फ़ा थे, सबसे ऊंचे थे। इसलिए कि अल्लाह ने भेजा है, रब उसकी हिफाजत कर रहे हैं, अल्लाह ने अपनी कुदरत की शाहकारी बनाकर भेजा है। इसलिए अमीर शरीयत सैयद ताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह के मुतालिक ये बात बड़ी मारूफ है कि शाह जी कहा करते थे, जैसे माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत करते हैं और उनको चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना सिखाते हैं, यहाँ रहो, इससे जो दोस्ती रखो, इससे ताल्लुक रखो, इससे ताल्लुक जोड़ो, इसको छोड़ दो, इसके साथ रहो। ऐसे ही अल्लाह ने अपने नबी की तरबियत का इंतजाम खुद किया। इस नबी को देखकर खुदा को समझो जिसने इस हसीन को ऐसा बाकमाल बनाया, अरब के उस आलूदा माशरे से निकाल कर कायनात का मुरब्बी बना के भेजा है, मुहसिन बना के भेजा है, मुअल्लिम बना के भेजा है, दाई बना के भेजा है, मुबल्लिग बना के भेजा है। और उसकी सारी की सारी अल्लाह तबारक व तआला ने आप ही किफालत फरमाई है, एक एक मोड़ पर आप ही हिफाजत फरमाई है कि आप उस माशरे से मुतासिर नहीं हुए, आप बुत परस्तों से मुतासिर नहीं हुए, आप शराब खोरों से मुतासिर नहीं हुए, आप सूद खोरों
उससे मुतासिर नहीं हुए। आप उस माशरे में बावजूद इसके कि वालिद भी दुनिया से चले गए, अम्मा भी दुनिया से चली गई, दादा भी दुनिया से चले गए, जनाब चचा थे जनाब अबू तालिब, तो वो भी अपने कारोबार वाले थे, अगरचे पूरी किफालत और इंतजामात और आपकी खिदमत में कमा हक हो उन्होंने अपनी पूरा हक अदा करने की जिसारत और कोशिश फरमाई। इस सब कुछ के बावजूद ऐसा बच्चा जिसका अब्बा भी ना हो, दादा भी ना हो, अम्मा भी ना हो, वो माशरे ऐसे आलूदा माशरे में हो और इतना पाक साफ हो और इतना मुज़क्की और मुज़क्का और मुअल्ला हो और मुजल्ला हो और इतना आला और अरफा हो, इतना अफजल व अकमल हो, यह अल्लाह की वहदानियत की अलामत है, यह अल्लाह के वजूद की अलामत। इसलिए फरमाया हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूला, इस रसूल को देख कर पहचानो कि उसका रब कैसा है जिसने इनको बनाया है। मुझे यहां एक बात अमीर शरीयत की याद आ गई, समझाने के लिए कहता हूं। अताउल्लाह शाह साहब बुखारी के मुतालिक मशहूर है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का तज़किरा कर रहे थे, आपके कमालात को बयान कर रहे थे, आपके महासिन को बयान कर रहे थे, आपकी खूबियों को बयान कर रहे थे, और यही आयत करीमा पड़ी हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूला रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। और इस पर गुफ्तगू करते हुए बड़ा अजीब फरमाया कि मैं जब आका के कमालात को देखता हूँ, हुजूर के महासिन को देखता हूँ, हुजूर के हुस्न व जमाल को देखता हूँ, हुजूर के कमालात को देखता हूँ, महबूब के मोइज़ात को देखता हूँ, आका की निगाह को देखता हूँ, आका की जबान को देखता हूँ, हुजूर के हाथों को देखता हूँ, महबूब के कदमों को देखता हूं, तो एक एक चीज निराली लगती है। ये क्या कमाल है कि निकली हुई आंख पे हाथ रखा है तो दुरुस्त हो गई है, टूटे हुए बाजू पे हाथ लगाया है तो सही सालिम हो गया है, इशारा किया है तो चांद टुकड़े हो गया है। फरमाया ये सारी खूबियां देखकर, उनके गुफ्तगू सुनकर, उनके कमालात देखकर, उनके एक एक अदा देखकर, उनकी नक्लो हरकत को देखकर, उनके महासिन को देखकर दिल ये कहता है कि मैं इसको अपना मालिक और खालिक न कह दूं। इसलिए कि अल्लाह खालिक है, उसने बनाया है, तो वो बीमारों को शिफा देता है, तो ये इस हाथ ने भी तो शिफा दी है, ये आंख ने को भी तो शिफा दी है, लुआब ने वो जो लुआब दहन लगा है उससे भी तो शिफा मिली है। भाई वो तकलीफों को दूर करता है, तो इनके आने से कितने लोगों की तकलीफें दूर हुई हैं। वो मसाइब खत्म होते हैं तो हुजूर की वजह से कितनी मुश्किलात खत्म हुई हैं। तो फरमाया जी चाहता है कि मैं इन्हें अपना आका, अपना मालिक, अपना खालिक कहूं, लेकिन जब मैं इस महबूब को देखता हूं जिसको अल्लाह ने हसीनों में आसन बनाया है, जिसे सैयदुल कायनात बनाया है, जिसे खातमुल नबिय्यीन बनाया है, जिसे इमामुल अंबिया वल मुरसलीन बनाया है, जिसे रहमतुल लिल आलमीन बनाया है, इसको जब देखता हूं कि ये किसी के दर पे झुकता है और ये जाते हैं और जाके कहते हैं अल्लाह अकबर, ऐ अल्लाह तू सबसे बड़ा है, तू अकबर है, मैं तेरे मुकाबले में क्या हूं, मैं तो तेरा बंदा हूं, असगर हूं, तू आला है, मैं तेरा अब्द हूं, तू माबूद है, मैं अब्द हूं, तू खालिक है, मैं मखलूक हूं, तू दाता है, मैं मंगता हूं। और फिर ये कहता है बंदा कि सुबहानक अल्लाहुम्मा, अल्लाह पाक तू है, वह भी हम देखा तारीफें तुझको जेब देती हैं, व तबारक अस्मुका, बरकत वाला तेरा नाम है, व तआला जद्दुका, बुजुर्गी तुझे जेब देती है, वला इलाहा गैरुक, तेरे सिवा कोई माबूद मकसूद हकीकी नहीं है। जब मैं ये देखता हूं उसको कि ये महबूब भी किसी के सामने झुकता है, तो फिर मुझे यकीन होता है कि अताउल्लाह शाह खुदा ये नहीं, ये भी उसका बंदा है जिसके सामने ये झुक रहा है, तू भी उसी के आगे झुक जिसके आगे महबूब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झुक रहे हैं। तो अल्लाह को अल्लाह समझने की, अल्लाह को अल्लाह मानने की, जमीन आसमान चांद सूरज सितारे इंसान का वजूद पूरी कायनात समझ में ना आए, इनको देखकर आदमी खुदा को नहीं समझता। तो फरमाया मेरे महबूब को तो देख लो,
इनकी अदाओं को देखो, इनकी वफाओं को देखो, इनके किरदार को देखो, इनकी गुफ्तार को देखो, इनकी रफ्तार को देखो, इनके हुस्न जमाल को देखो, इनके कमालात को देखो, इनके नाम के कमाल देखो, इनके जान के कमाल देखो, इनके जिस्म के कमाल देखो, इनके इस्म के कमाल देखो। जिसको मैंने इतना बाकमाल बनाया है, मैं वही रब हूं जिसकी वो इबादत करते हैं, तुम भी उसी की इबादत करो। हुवल्लज़ी बाअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूला, उसने उम्मियों में अपना रसूल भेजा। अब इस रसूल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यह अल्लाह के वजूद की सबसे बड़ी दलील है। इन्होंने आकर हमें क्या समझाया, क्या दिया, इस पर मैं तफसीली गुफ्तगू तो फिर एक बाद में करूंगा, लेकिन यहां एक बात अर्ज करनी है कि उन उम्मियों में, उम्मियो दकीक दान आलम बेसाया साहिबान आलम, ये गालिबन फैजी का शेर है, बड़ा अजीब कहा। उम्मियो दकीक दान आलम, आए तो उम्मी बन के, उम्मी का माना यह होता है जो किसी से लिखना पढ़ना ना सीखे, कोई दुनिया के अंदर उसका उस्ताद ना हो, लेकिन जिसने पढ़ा के भेजा है, दकीकतान आलम, कायनात की दकीक चीजों के उलूम पर भी आपको कमाल हासिल है, उनकी महारत ताम्मा हासिल है, पूरी दुनिया को इल्म दिया है, मार्फत दी है, पहचान दी है। बल्कि इस वक्त दुनिया के जितने उलूम मुतरश्शे किए जा रहे हैं और उनको गोया अखज़ किया जा रहा है, और कुरान सुन्नत की रोशनी में मुख्तलिफ तरीके से ये सारे उलूम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से मिले हैं। तो फरमाया उम्मी दकीक दान आलम बेसाया साहिबान आलम, आए तो बेसाया बन के कि अब्बे का साया नहीं, 6 साल के अम्मा का साया नहीं, 8 साल के दादा का साया नहीं, लेकिन साहिबान आलम पूरी इंसानियत पर, पूरी कायनात पर सबसे बड़ा साया मोहम्मद करीम की रहमत और नबूवत का है कि आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप शफीउल मुज़निबीन हैं, आपकी रहमत का साया है कि आप गरीब के मुहिब हैं, मिस्कीन के साथी हैं, शाहों के ताज हैं, अकाओं के आका हैं, गुलामों के मोहसिन हैं, यतीमों का सहारा हैं, पूरी इंसानियत के लिए रहबर हैं, रहनुमा और मुक्तदा हैं, फिर आप मुअल्लिम कायनात हैं। तो फरमाया हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूला, उम्मियों पे अपना रसूल भेजा, यतलू अलैहिम आयातिही। इस महबूब ने 4 काम किए। आने का ये मकसद है बेसत मुस्तफ़ा, मकसद बेसत कि आपकी बेसत, आपकी विलादत का मकसद था। यतलू अलैहिम आयातिही कि पहले तो आपने कुरानी आयात पढ़कर लोगों को सुनाई, सिखाई, अल्लाह का कलाम अलहम्द से बन्नास तक पूरे कुरान की तिलावत की। दूसरा वयुज़क्की है, महबूब ने सबको पाक किया है। ये तासुर गलत है कि 2 पाक हुए, 4 पाक हुए, 5 हुए, 12 हुए, 14 हुए, 20 हुए, 30 हुए, 50 हुए, 70 हुए, नहीं, वयुज़क्कीहिम क़यामत तक के लिए है। जो नबी की तालीम के करीब आता जाएगा पाक होगा, शिर्क से पाक होगा तौहीद आएगी, कुफ्र से पाक होगा इस्लाम आएगा, जहालत से पाक होगा इल्म की रोशनी मिलेगी, जलालत से पाक होगा हिदायत का नूर मिलेगा। वयुज़क्कीहिम, नबी ने सबको पाक किया है और इन तमाम आलूदगियों से पाक करके वो कमाल अता किया है। और फिर वयुअल्लिमुहुमुल किताब, एक है अल्फाज़े कुरान कि तिलावत आयात, एक है उसकी मानी और मतालिब। ये कुरान मजीद के भी अल्लाह के महबूब ने सिखाए हैं। कुरान अल्फाज रब के हैं, माना इसका मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। जिस लफ्ज का माना नबी न सिखाए या नबी से समझकर सहाबा न बताएं, तो अपनी तरफ से उसका कोई हम माना करें, अगर वो कुरान सुन्नत के मुनाफी है तो फिर वो बाज दफा कुफ्र में चला जाता है। इसलिए जिसके अल्फाज हैं माना भी उसकी तरफ से है। इसलिए उलमा ने कुरान की तारीफ भी यही लिखी है कि अल लफ्ज़ वल माना जमान, अल्फाज भी अल्लाह के अहकामात के हैं और इसके माने भी रब की तरफ से हैं। तो हुजूर ने तालीम किताब दी। चौथी चीज तालीम हिकमत। हिकमत कहते हैं असरार और रुमूज को। मिसाल के तौर पर आपके लिए हुक्म है कि आप वुजू करें। अब वुजू में हाथ क्यों धोने हैं, इसके क्या असरार हैं?
कुल्ली क्यों करनी है, इसकी क्या हिकमतें हैं, 3 दफा क्यों करनी है, इसकी क्या हिकमतें हैं, नाक में पानी क्यों देना है, इसकी क्या हिकमतें हैं, चेहरा 3 दफा क्यों धोना है, इसकी क्या हिकमतें हैं, सर का सिर्फ मसा क्यों करना है, इसकी क्या हिकमतें हैं। एक एक चीज की हिकमतें, खाने के दस्तरखान पर आप बैठे हैं, बैठ के क्यों खाना है, खड़े होकर नहीं, इसकी क्या हिकमत, बैठने के ये 3 तरीके अल्लाह के नबी ने बताए, चौथा क्यों नहीं, इसकी क्या हिकमत, खाना खाने में जनाब बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म क्यों आया। ये सारी बातें रहमत कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ब खुद सिखा दी हैं। तो ये आपकी तालीम किताब और तालीम हिकमत, ये 4 चीजें थी, तिलावत आयात, तालीम किताब, तालीम हिकमत और तज़किया नफ्स। और फरमाया व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, इस महबूब के आने से पहले तुम लोग खुली गुमराही में थे, यानी ये लोग अहले मक्का या अहले अरब या जिनमें हुजूर तशरीफ लाए। यहां एक बात अर्ज करना चाहता हूं, उम्मीयीन से मुराद अहले अरब हैं, इसलिए कि अरबियों को उम्मी कहा जाता था। आम तौर पर अहले अरब उस वक्त उम्मियों की तरह रहते थे, भेड़ बकरी पालते थे, जानवर रखते थे, इसी पे गुजारा करते थे, लड़ना झगड़ना इनका मशगला था। तो ये अहले अरब थे। अगली आयत में है व आखरीन मिनहुम, इनके अलावा और भी होंगे। ये तो अरबी है ना, हुजूर इनमें आए, लेकिन हुजूर औरों की तरफ भी आए हैं, यानी अजमियों की तरफ भी, लेकिन उनमें से लम्मा यलहकू बिहिम, जो अभी इन अहले अरब को मिले नहीं, आएंगे बाद में। और इस आयत की तौज़ीह और तशरीह में मुफस्सिरीन ने, इमाम शाफी से भी मनकूल है, इब्न कसीर में भी है कि हजरत सलमान फारसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ फरमा थे, तो आपने सलमान पे कंधे पे हाथ रख के फरमाया रजुलुम मिन अबनाइल फारिस, एक आदमी पैदा होगा अहले फारिस में से। और बाद में है रिजालुन, एक जमात तैयार होगी अहले फारिस इन लोगों में से। और इससे मुराद के आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, यही वो 4 काम, तिलावत आयात, तालीम किताब, तालीम हिकमत, तज़किया नफ्स जो रहमत कायनात कर रहे हैं, ये अल्लाह के नबी से उनकी तरफ फैले पहुंचेगा और वो भी यही काम करेंगे। और अल्लाह बड़े गालिब और हिकमत वाले हैं कि अरबियों के सरदार मोहम्मद करीम को चुना है, कायनात की सरदारी दी है, लेकिन इस इल्म की इशाअत के लिए क़यामत तक के लिए अहले अरब ने इसमें अजम को भी शामिल फरमा दिया कि वो लोग भी तैयार होंगे, वो भी दीन सीखेंगे। इसलिए अगर आप गौर करें तो इसमें तो कोई शक नहीं कि महबूब अहले अरब में आए, लेकिन आजकल के दौर में अगर हम गौर करें तो आजम के जितने बड़े बड़े जय्यद उलमा, मशाइख, मुफस्सिर, मुहद्दिस, ये लोग कमाल उरूज को पहुंचे हुए हैं, शायद अरब इस मकाम को ना पहुंचे हुए हों। लेकिन पहले दौर के जो लोग गुजर गए वो तो हुजूर के कुर्ब के जमाने के थे। ज़ालिक फज़लुल्लाह युतीही मन यशा, अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसको चाहते हैं अता करते हैं। यानी अल्लाह इसके भी पाबंद नहीं कि नस्ल और नसब में किसी चीज को चलाएं, अल्लाह इसके भी पाबंद नहीं कि किसी कौम और बिरादरी या किसी जबान के अंदर किसी चीज को चलाए, जिसको चाहे अपना फजल अता फरमा दें। आप आइम्मा इकराम को देखिए, सैयदना इमाम आजम नुअमान इब्न साबित, अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल, इन आइम्मा में से 3 इमाम अरबी हैं, अजमी इमाम अबू हनीफा हैं, और सबसे ज्यादा फ़क़ाहत के लिहाज से और मसाइल के इस्तिंबात के लिहाज से और इस हवाले से तदब्बुर के लिहाज से अल्लाह ने उनको एक मुनफरिद मकाम अता किया है, जिनको वो सब कहते थे कि अबू हनीफा हम सब के लिए बाप की हैसियत रखते हैं और गोया हम तमाम फ़क़हा उम्मत के जद्द अमजद हैं, हमने इल्म फ़क़ाहत इनसे सीखा है। तो ये अल्लाह का फजल है, जिसको अल्लाह चाहे अता फरमाए। ये इशारा इस तरफ है कि महबूब के होते हुए दीन तो है ही है, लेकिन महबूब के बाद क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। अल्लाह बंदों को चुनते रहेंगे, अरब में से भी, अजब में से भी, करीब वालों में से भी, दूर वालों में से भी, वहां की जबान वालों में से, गैर जबान वालों में से, वो आते रहेंगे, दीन सीखते रहेंगे, तिलावत आयात होती रहेगी, तज़किया नफ्स चलता रहेगा, तालीम किताब होती रहेगी, हिकमतें बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने लिखा है, हिकमत से मुराद
इत्तबाए सुन्नत रसूल है। इसलिए कि जो भी अल्लाह के नबी की कोई सुन्नत है उसके पसे पर्दा बीसियों हिकमतें मख्फी हैं, जिनको मुख्तलिफ लोगों ने जमा करने की कोशिश भी की है। एक किताब भी इस हवाले से नज़र से गुजरी थी कि सुन्नत नबवी और जदीद साइंस के मौजूदा साइंस के सी तरीके से एक एक सुन्नत की हिकमतें गालिबन ये डॉक्टर हकीम चुगताई साहब हमारे एक दोस्त हैं तारिक महमूद साहब, उनकी किताब है 4 जिल्दों में। ऐसे ही डॉक्टर खालिद गजनवी ने एक किताब लिखी है तिब्ब नबवी और जदीद साइंस, उसके अंदर भी उनने कई जिल्दों में लिखी कि एक एक अमल जो हुजूर ने बताया मौजूदा साइंस तहकीक करके वहां पहुंची है। तो मैं समझाना ये चाहता हूं कि तमाम उलूम का मरकज आका है, सारी हिदायत का मरकज आका है, रब की पहचान का मरकज आका है। कि खुदा को पहचानना चाहते हो तो पहले नबी के दरवाजे पे आओ, नबी की जबान से खुदा को पहचानो। यही फर्क तो अबू बकर और अबू जहल में है। अबू जहल ने रब को अपनी मर्जी से माना है, अबू बकर ने मोहम्मद की जबान से माना है, अबू लहब ने अपने मिजाज से माना है और उमर इब्न खत्ताब ने रसूलुल्लाह की जबान से माना है। अल्लाह हम सबको अल्लाह अपनी पहचान, अपने महबूब की पहचान हुजूर के नक्शे कदम पर चलाए, हमारे वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत फरमाए, अंदरूनी बैरूनी खतरात से महफूज करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम।